Today I'm here with the topic DNA fingerprinting. So this DNA fingerprinting topic comes under unit 3rd, that is genetics and evolution. So first of all, we have to know what is DNA fingerprinting. So this technique is to identify similarities of DNA fragments of the two individuals. And this technique was first time developed by Sir Alex Jeffrey. He was the great genetist, British genetist in 1985. This DNA fingerprinting, also known as DNA profiling or DNA typing. So next, what are the basis of DNA fingerprinting? यानी क्या बेसिस है जिसके ऊपर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं? यानी इससे पहले हमने डिस्कस किया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट इज द डिफरेंस इन द जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल्स दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड. It involves identifying difference in some specific regions in DNA, call it repetitive DNA, variable number of tandem repeats. So this DNA fingerprinting is mainly based on VNTRs. VNTRs. So पहले हमें पता होना चाहिए what is this VNTRs. VNTRs क्या होते हैं? Now, dear students, as all of you know that DNA deoxyribonucleic acid जो प्रेजेंट होता है विद इन द क्रोमोसोम ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स. सो दिस ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डीएनए को दो भाग में डिवाइड करते हैं. दैट इज वन इज बल्क डीएनए and other is satellite DNA. This bulk DNA, it forms around 99.9% of DNA, total DNA, and only 0.1% that forms satellite DNA. As you know that DNA consists of two parts. दो parts होते हैं. One is called exon and other is called introns. This exon part is called coding sequence. It is also known as coding sequence. And this introns is called non-coding sequence. So this, according to from HGP, Human Genome Project, 99.9% of the total DNA are similar in every individual, and that is only 0.1% that is difference in every individual. And on the basis of this difference, DNA fingerprinting is made. So this satellite DNA or introns, it consists of two parts. The satellite DNA, it also divides in two parts, that is mini satellite and microsatellite. Mini satellite and microsatellite. And this mini satellite, that consists of around 10 to 60 base pair, and this microsatellite that consists of around less than 10 base pair, and these many satellites are known as VNTRs. This is called VNTRs. So mainly DNA fingerprinting is based on difference in VNTRs, variable number of tandem repeats. That is variable DNA is called repetitive DNA, variable number of tandem repeats, VNTRs, because in this sequence a small stretch of DNA is repeated many times. This size of VNTR is varies in every individual, that is varying size from 0.1 to 20 kb
This number of repeats is specific from person to person. Actually, DNA fingerprinting is done by differencing this VNTR because it is specific to every individual, and these VNTRs are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. As already discussed here, that is density basis. There are two types: bulk DNA and satellite DNA. And this peak is more. Bulk DNA peak is more, and this satellite peak is small. Bulk DNA forms a major peaks and other small peaks called satellite DNA. As already discussed, satellite DNA is classified into mini and microsatellite based on this classification is based on three bases, that is AT, GC rich. AT means that is nitrogenous base, adenine, thymine or guanine and cytosine ratio are on the basis of length of the segment, how the length is this, and number of repetitive units, how many times these sequences are repeated. So on the three bases, this DNA is divided to bulk DNA and satellite DNA. And the satellite DNA sequence does not code for any protein because as also mentioned that this forms introns. Introns means non-coding sequences. Satellite DNA sequence show high degree of polymorphism, that is, it varies in every individual. At different locus, this repetitive sequence is different and forms basis of DNA fingerprinting. And this VNTR is the mainly basis for DNA fingerprinting. Now, what are the source of DNA fingerprinting? कि क्या सोर्स होना चाहिए? आप कैसे कर सकते हो DNA fingerprinting को? कुछ तो आपके पास सैंपल या सोर्स तो होना चाहिए. So there are different sources. Mainly, this already we discussed in this discussed earlier that this DNA source are source of DNA fingerprinting. There are different sources like here mentioned, that is saliva, that is blood, maybe hair, even single hair, or semen, or urine stains on the clothes and other items, vaginal swabs, वगैरह, etc. So these are the some of the sources. Even from these sources, DNA can be isolated from the samples that are years of old, that is such as bones and all, which is very old. You can also, such as you have skin cells, hair roots, blood, saliva, वगैरह, etc. These are the some of the sources for DNA fingerprinting. So steps of DNA fingerprinting. अब आपको सोर्स भी पता चल गया कि कहां से आप DNA fingerprinting के लिए क्या सोर्स आपको चाहिए. सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग की कैसे करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग. आप अगर आप DNA फिंगरप्रिंटिंग करना चाहोगे तो कैसे आप कर सकते हो DNA फिंगरप्रिंटिंग. तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ DNA. दैट इज कि जिस सोर्स, जो भी सोर्स आपने लिया, चाहे ब्लड सैंपल लिया या आपने सीमेन लिया या जो भी टिश्यूज आपने बॉडी का लिया, उनसे पहला जो स्टेप है हमारे आइसोलेशन ऑफ DNA की. एज यू नो दैट कि हर सेल्स में आपके बॉडी के जितने भी सेल्स है उनमें DNA प्रेजेंट होगा, तो वहां से हमें DNA को एक्सट्रैक्ट करना है. दैट इज आइसोलेशन ऑफ DNA. सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दिस आइसोलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह. सो with these techniques you can isolate DNA. That is the first step, isolation of DNA. Second step, amplification of DNA by PCR. As PCR, you know that PCR means polymerase chain reaction. ये क्या होता है PCR? It's a machine, actually machine होता है जिसका फुल फॉर्म है polymerase chain reactions. अगर आपके सैंपल में डीएनए बहुत कम मात्रा में, फॉर एग्जांपल अगर एविडेंस जहां पे क्राइम सीन है वहां पे आपको एक सिर्फ हेयर फॉलिकल्स मिल गया, तो दैट इज बिल्कुल वहां पे माइन्यूट अमाउंट्स में डीएनए होगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो उस वक्त हम क्या करेंगे, पीसीआर टेक्निक को यूज करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इस मशीन की मदद से आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हो, यानी दैट वाज मल्टीप्लाई कर सकते हो इन थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइम्स उस डीएनए को, ताकि आप अच्छे से उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाओगे. सो दिस एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर इफ द सोर्स इज इन माइन्यूट क्वांटिटी. नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. आपके पास डीएनए इसके बाद आइसोलेशन के बाद आपके पास अगर दिस डीएनए फॉर एग्जांपल इज द डीएनए दैट कम्स आफ्टर दिस आइसोलेशन. सो इसके बाद आप इसका क्या करोगे, रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स की मदद से
दिस कट करोगे आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, यू कैन दिस डिवाइड्स दिस डीएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स विद द यूज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है दैट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, एक खास साइट्स पे डीएनए को कट करते हैं। ये कब करते हैं? आफ्टर दिस आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग दिस एंजाइम्स। नेक्स्ट स्टेप, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करता है? दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट्स आल्सो ए मशीन कि जहां पे एग्रोस जेल स्लैब लगा होता है। एग्रोस इट्स एक्चुअली अल्गल प्रोडक्ट्स की वहां से जेल बनाते हैं। तो दिस मशीन्स में एग्रोस की जो वेल्स बनाते हैं, दिस आर द वेल्स, उन वेल्स में अब इस फ्रेगमेंटेड डीएनए को डालते हो, यानी जिसमें डिफरेंट वैल्यूज है। तो पहले वैल्यूज में फॉर एग्जांपल अगर मार्कर है, एविडेंस का अगर डालते हो, सेकंड में आप सस्पेक्टेड 1, सस्पेक्टेड 2, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने सस्पेक्टेड पर्सन का सैंपल लेते हो। उस बेसिस पे इन वैल्यूज में इन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स डालते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देयर इज अ स्पेशल टेक्निक दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पे डीएनए सेपरेट होते हैं। हियर इस मशीन्स में जो फ्रेगमेंटेड डीएनए है दैट इज सेपरेटेड दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ की बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दो बेसिस पे, लेंथ और चार्ज की बेसिस पे डीएनए इस वैल्यूज इस जेल में क्या होते हैं दैट आर वहां पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम में आपको यहां पे दिखेगा नहीं डीएनए, तो वहां पे बैंड्स दिखने के लिए दूसरा एक टेक्निक्स होता है दैट इज कॉल्ड साउदर्न ब्लॉटिंग, या सिंपली ब्लॉटिंग इसको बोलते हैं। दिस ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि एक मेम्ब्रेन्स होता है, या नायलॉन शीट भी इसको बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड नायलॉन शीट। सो इट इज अ नायलॉन शीट, सिंपल एक शीट होता है जो हम एग्रोस जेल के ऊपर डालते हैं। तो उसको विद इन आवर्स या ओवरनाइट इसके ऊपर रखते हैं। ये क्यों करते हैं? बिकॉज वहां इस स्लैब में आपको दिखाई नहीं देंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो वो जो होता है ये डीएनए दैट कॉपी हो जाता है, यानी किसके ऊपर हो जाता है? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर कॉपी हो जाता है। उस टेक्निक को बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग, बिकॉज दैट द साइंटिस्ट के नाम पे इयन साउदर्न, जिसने फर्स्ट टाइम इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। तो इसके बाद है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेड सिंगल स्ट्रैंडेड बाय यूजिंग अल्कलाइन केमिकल्स। कि एज यू नो दैट डीएनए जो होता है हमारी बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड दैट वाज पोजीशन में होता है। इसको फिर इस डबल स्ट्रैंडेड को बाद में बनाता है दैट वाज सिंगल स्ट्रैंडेड। दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड एंड दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इस सिंगल स्ट्रैंड पोजीशन में लाते हैं विद द यूज ऑफ ए केमिकल्स दैट इज नोन एज अल्कली केमिकल्स। अल्कलाइन केमिकल्स की मदद से उसको सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज द ब्लॉटिंग स्टेप्स की ब्लॉटिंग स्टेप। यहां पे आपको डिफरेंट बेन्स आपको नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन। यानी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? यूजिंग लैबलेट वीएनटीआर प्रोब्स। वीएनटीआर प्रोब्स, तो एज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वीएनटीआर क्या होते हैं। सो वीएनटीआर के प्रोब्स बनाते हैं। प्रोब्स क्या होता है? दैट वाज अ कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस which is made in the laboratory, जो हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाते हैं। लेकिन उस वीएनटीआर पे जो सीक्वेंस होता है दैट इज कंप्लीमेंट्री टू दैट, सॉरी, उस प्रोब में जो सीक्वेंस होता है दैट इज कंप्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। वीएनटीआर की कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री मींस अगर 80 है तो उसके कंप्लीमेंट्री में होगा एडीन थाइमिन के कंप्लीमेंट्री में थाइमिन एडेनिन होगा। इस तरह के प्रोब्स हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। नेक्स्ट फिर हमें डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी इज अनदर टेक्निक कि वो जो बेन्स हमें दिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद, वो उसको देखने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें क्या करते हैं एक्सरेज जो होते हैं उसके ऊपर डालते हैं। एक्सरेज आर यूज्ड, कि उस प्रोब के ऊपर हम एक्सरे डालते हैं ताकि उस वजह से जो इमेज हमें आता है, इमेज इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बेन्स ऑब्टेन, इट्स कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वो जो बेन्स हमें नजर आता है उस एक्सरेज की वजह से, वहां पे डिफरेंट बेन्स नजर आता है ड्यू टू दिस एक्सरेज। वो जो बेंड एक्चुअली होता है दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ब्लॉटिंग में ये जो डिफरेंट बैंड्स है, एक्चुअली दिस इज द वीएनटीआर। यहाँ पे सेपरेट हुआ है, पहले भी डिस्कस किया हमने कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड चार्ज। सो इस बैंड्स की मदद से हम कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रिजल्ट हम कह सकते हैं।
एंड लास्टली अब हमें प्रोसीजर भी पता चल गया कि आपको कैसे करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो लास्टली हमारे एप्लीकेशंस, हाँ क्यों दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं हम एक्चुअली, क्या एप्लीकेशंस है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट एप्लीकेशंस इज दैट वाज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज इन फोरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्रिमिनल सस्पेक्ट्स। की आजकल सोसाइटी में इस तरह के क्रिमिनल केसेस होते हैं जहां पे क्रिमिनल कोई ट्रेस नहीं छोड़ता। सो उस वक्त जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल डालें, अगर कहीं पे मर्डर हो जाते हैं वहां पे क्रिमिनल साइट्स पे आपको ब्लड स्टेन्स फॉर एग्जांपल मिल जाता है, तो उस ब्लड स्टेन्स को आप कलेक्ट करते हैं, उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। दिस आर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बैंड्स ऑफ दिस एविडेंसेस वन। और इसके बाद थ्रू दिस इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे सस्पेक्टेड का आपका पता चलता है। तो वो जो भी सस्पेक्टेड डिपेंड्स आता है कितना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 सस्पेक्ट है, चारों सस्पेक्ट को लाया, उनके ब्लड सैंपल लिए और उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया। सो these are the results of DNA finger. For example, this is the suspect 1, this is the suspect 2, 3 and 4. So इसके बाद आप कंपेयर करते हैं कि जो वहां पे आपको जो ब्लड मिला था एविडेंस के तौर पे, उसका क्या मार्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल दिस आर द सीक्वेंस, यहाँ पे डिफरेंट मार्कर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 kb होगा, फिर 200, 300 एंड सो ऑन, कि सस्पेक्टेड 1 का मैच करता है कि नहीं बैंड इससे, यानी कुछ बैंड्स यानी इससे मैच करता है लेकिन बाकी नहीं करता। सस्पेक्टेड 2 का भी कुछ बैंड्स या फॉर एग्जांपल ये वाला मैच करता है, बाकी बैंड्स बिल्कुल अलग से आ रहा है। सस्पेक्टेड 3 का बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो ब्लड जो एविडेंस वहां पे हमें मिला था वो सस्पेक्टेड 3 का बिल्कुल मैच करता है। फॉर एग्जांपल एक ही सीरीज में आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 kb में आ रहा है या ये 400 और 500 में आ रहा है, बिल्कुल सेम लाइंस में आ रहा है, सेम सीक्वेंस में आ रहा है सस्पेक्टेड 3 का सस्पेक्टेड एविडेंसेस से। सो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि सस्पेक्टेड 3 इज द रियल कल्प्रिट, हाँ, कि वहां पे जो सीन मिला था वहां उसके ब्लड से मैच करता है। तो इससे आपको कॉम्प्लिकेटेड जो क्रिमिनल्स होता है उसका केसेस आपको पता चलता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन था दैट इज इन फोरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्रिमिनल सस्पेक्ट्स लाइक मर्डर केसेस और रेप केसेस में जो होता है आप आराम से इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कल्प्रिट्स को पकड़ सकता है। नेक्स्ट, this applied for paternity testing. Paternity testing is as you know कि that was बहुत सारे सोसाइटी में इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं। हाँ, चाइल्ड होता है, फॉर एग्जांपल 2-3 पेरेंट्स उसको क्लेम करता है कि कोई बोलता है ये मेरा चाइल्ड है, कोई दूसरा बोलता है मेरा चाइल्ड है। उस वक्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से आप बिल्कुल क्लियरली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज जो चाइल्ड में जो जीन होगा दैट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ द 2 पेरेंट्स, टू पेरेंट्स, तो वहां से उस पेरेंट्स से ज्यादा मैच करेगा एज कंपेयर टू अदर पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल दैट वाज दिस, एक फॉर एग्जांपल चाइल्ड का या सोल्जर्स का एक दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। यहाँ पे आपके 3 फॉर एग्जांपल 4 पेरेंट्स यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं एक दिस चाइल्ड को। सो उन सब का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया। सो ए वाले में बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है कुछ ही सीक्वेंस से। फॉर एग्जांपल ए बी जो पेरेंट्स है उसका मैच नहीं कर रहा है। सी डी जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल कुछ बैंड्स एज कंपेयर टू अदर ज्यादा मैच कर रहा है। देखो एक ही लाइन में ये सारा आ रहा है। सो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि दैट वाज पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में कि किस फादर या किस पेरेंट्स का कौन सा चाइल्ड है, उसको क्लियरली आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है that is used to find evolutionary history of an organisms and trace out the linkage between various groups of organisms, कि that was evolutions, that was other topic आप जानते हो, that was कि किस तरह के relations है, that was evolutions में that is gradual change from simple to complex one, कि organisms में किस तरह के relations है, किस तरह के linkage है, because बहुत सारे ऐसे genes होता है जो विदाउट चेंजिंग इंट्रॉन्स में इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू दैट वाज देयर ऑफस्प्रिंग्स इन जनरेशन टू जनरेशन। उसकी मदद से आप डिफरेंट इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होता है या लीनिएज जिसको बोलते हैं वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और लास्टली दैट वाज इज यूज्ड टू डायग्नोस हेरिडिटरी डिजीजेस। बहुत सारे डिजीज यानी दैट वाज फॉर एग्जांपल फिनाइलकीटोनुरिया हुआ, दैट वाज सिकल सेल एनीमिया हुआ, हीमोफीलिया हुआ, दीज आर सम ऑफ द जेनेटिक डिजीजेस। इन डिजीज को भी कैसे इनहेरिट होता है इसका पैटर्न भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पता लगा सकते हो। सो दीज आर ओवरव्यूज अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि उस व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसका क्या दैट वाज सोर्सेस होता है, क्या बेसिस होता है, and what are the methods, and lastly what are the application of DNA fingerprinting. So I think that was in इस topic से आप लोगों को clear हुआ होगा, that was about DNA fingerprinting. So thank you very much.